Hello students, this is the lecture number 12 of class 12 physics. In a previous video we learned what is the capacitance. We revised the things. The capacitance, the C denoted by is equal to charge divided by potential. Charge divided by potential, this is the capacitance. It is used to store the charges, and capacity unit of the capacitance is a farad. It is a very large unit. Then हमने देखा capacitance of a isolated sphere, capacitance of sphere, the C is equal to 4 pi epsilon naught into R. So R is the radius of the sphere, C is directly proportional to R. उसके बाद हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर. प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, व्हेन द मेटल प्लेट is given the some charge, it is stored the charge over the plate, and when uncharged plate it is brought close to the charged plate, the charge holding capacity of this plate is also increased. The plate A, the charge holding capacity is increased by bringing the another uncharged plate close to the plate A. That is a plate B, and it will accumulate the more charge in the opposite side. This is positive, and inside this is due to the force of attraction is when it is connected to the ground, this positive charge will be flow to the ground, and again charge holding capacity of the capacitor is increases. So capacitor is used to hold the charge. कैसा होता है capacitor? What is the shape? What type of it is? This is the one capacitor which having two terminals, and the value of the capacitance which is used for the storing the charge, it is what is the value of the capacitor? It is printed over it. It is written as a 220 microfarad. This is the value of the capacitance. It has two terminals. One is a positive and another is a negative. There is a black line of this terminal. Along the side of this black line, it is a negative, and this is a long leg which is a positive. This is the electrolytic capacitor. This is also another type of the capacitor. It having a different value. This is a 4.7 microfarad. It is also has a two legs. One terminal is longer, other is a shorter. Longer is a positive, shorter is a negative. This known as a electrolytic capacitor. This is another type of the capacitor which having a carbon capacitor, which is having a no positive negative, or this is also the another type of the capacitor. These are the capacitors which is used in a electrical circuit to store the charge. Now what is the principle of the capacitor हो गया. Then energy stored, this is the important capacity of a capacitance of parallel plate capacitor. एक देखा हमने. This is the important derivation in the exam point of view, और हमने derive किया C is equal to epsilon naught A divided by D. A is the area of the plate, D is a small d is a separation distance between the plate. Suppose this two parallel plate, they separated by a two distance is a small d, and this is a charge accumulate. Surface charge density for the first plate A is a sigma, and another plate, this is the minus surface charge density. Then electric field in this region equal to 0. यहाँ देखेंगे राइट साइड ऑफ दिस इज इक्वल टू 0, बट इन बिटवीन द प्लेट दिस इज सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट. ये हमने
फर्स्ट लेसन में पढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट E इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई A। तो जस्ट फास्ट रिकैप करते हैं हाउ टू डिराइव इट। ये दो प्लेट है, पैरेलल है, सेपरेशन डिस्टेंस D है, इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा प्लस और ये माइनस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू ये फॉर्मूला इसका V इंटू और इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू इन बिटवीन द प्लेट सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट एंड टोटल चार्ज ऑन ए प्लेट A इक्वल टू चार्ज डेंसिटी क्या आता है, चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई एरिया A। So the total charge Q equal to charge into sigma or area is a तो this sigma is equal to Q divided by A। ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट ड्यू टू दिस चार्ज कहाँ से रहेगा, दिस इज द डायरेक्शन और E इज इक्वल टू इसका वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट A। Then capacitance C is equal to Q divided by V and V is equal to E into D। ये एक फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा है। So V is equal to E का वैल्यू कितना है, ये लिखेंगे इसमें Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट A into D and C is equal to Q डिवाइड बाई V का वैल्यू यहाँ रखेंगे Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई डी एंड दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई डी। जस्ट इस तरीके से ये ड्यूरेशन है। इट विल फॉर द 3 मार्क्स क्वेश्चन, इसका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एनर्जी कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटेंस व्हेन एयर इज अ मीडियम बिटवीन द प्लेट the equal to show that या prove that equal to एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। उसके बाद हमने पढ़ा कैपेसिटेंस पैरेलल कनेक्ट किया तो कितना है कैपेसिटेंस, ये नहीं पैरेलल कनेक्ट किया कैपेसिटेंस तो रिजल्टेंट होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 डैश डैश दिस इज ए Cn। और पैरेलल कैपेसिटर मतलब कैसा, दे व्हेन 2 कैपेसिटर्स, अगर मेरे पास 2 कैपेसिटर्स है तो इसको दिखाएंगे तो ये पैरेलल कनेक्ट करना मतलब एक का टर्मिनल दूसरे को कनेक्ट कर लो और इस तरीके से ये 2 लेग साथ में कनेक्ट करेंगे और ये कनेक्ट करेंगे तो ये हो गया पैरेलल। और जब सीरीज करना है तो क्या करना है, इसका एक लेग दूसरा लेग से कनेक्ट करना है इस तरीके से। अगर ऐसे कनेक्ट करते हैं ऐसा तो हो गया सीरीज और ऐसा कनेक्ट करते तो पैरेलल। तो इस तरीके से सीरीज और पैरेलल होता है। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो टोटल कैपेसिटेंस और रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इक्वल टू सबका सम होता है C1 प्लस C2। और जब सीरीज में है तो रेसिप्रोकल ऑफ द सीरीज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डैश डैश दिस इज 1/Cn। तो इस तरीके अगर कैपेसिटेंस पैरेलल है, ये हो गया कि पैरेलल कैपेसिटेंस, और तो ये इसका पोटेंशियल क्या हो गया, पोटेंशियल V इज ए सेम, पोटेंशियल सेम इन ऑल, दिस इज द C1 C2 C3 सबका पोटेंशियल कैसा रहेगा सेम। लेकिन इसका चार्ज ये Q1 स्टोर करेगा, इसमें Q2 रहेगा एंड टोटल चार्ज हम लेते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इस तरीके से होता है। और जब सीरीज में करते हैं, अगर सभी कैपेसिटेंस हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे 3 C1 C2 C3 तो इसका चार्ज क्या रहता है, चार्ज इज द सेम, सभी में चार्ज क्या रहेगा सेम रहेगा। दिस इज माइनस Q, ये प्लस Q और ये माइनस Q और इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा डिवाइड होगा V2 और ये V3 इस तरीके से रिजल्टेंट इक्वल टू V। तो ये हो गया प्रीवियस लेसन का एक रिवीजन। और अब देखें आज का यूनिट एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। हम कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर पढ़ा
आप देखो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटेंस, आज पढ़ते हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड और कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस, ये दोनों में अंतर है। एनर्जी स्टोर्ड मतलब इसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड हो गया, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटेंस इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस और एनर्जी स्टोर्ड, ये दोनों डिफरेंट टर्म है। तो ये लिख, चलो इसको पढ़ते हैं। एनर्जी stored in a capacitance, energy stored in the capacitance. Consider a parallel plate capacitor. अगर कोई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मान लो ये लेते हैं और ये अनचार्ज है, जिसको चार्ज करने के लिए हम एक्सटर्नल एक बैटरी कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से, और चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटेंस बिट बाय बिट। बिट बाय बिट मतलब थोड़ा थोड़ा चार्ज शेयर होता है। एट ए टाइम इट विल नॉट चार्ज, ये चार्ज इज ए शेयर्ड, इंक्रीज ग्रेजुअली। सो दिस पोटेंशियल V इक्वल टू Q डिवाइड बाई C। पोटेंशियल डेवलप इन बिटवीन द प्लेट, दिस इज ए चार्ज Q और ये माइनस Q। The potential equal to V is equal to Q divided by C, and this potential is a charge is a increase, charge increase bit by bit, मतलब gradually छोटा छोटा अमाउंट जाके बढ़ता जाएगा। तो amount of work done, amount of work done, कौन वर्क डन किया, दिस बैटरी E वर्क डन टू चार्ज द कैपेसिटर, चार्ज कैपेसिटर dq विल बी ए सपोज dw इक्वल टू v इंटू dq। कितना पोटेंशियल है, q डिवाइड बाई c, और छोटा सा चार्ज ग्रेजुअली बढ़ता है चार्ज, इसीलिए इसको लिखा वर्क डन। ये बैटरी छोटा छोटा चार्ज इसको ट्रांसफर करता है, तो dw इक्वल टू Q। तो dw इक्वल टू इसका वैल्यू रखते हैं Q डिवाइड बाई C इंटू dq। सो टोटल वर्क डन टू चार्ज कैपेसिटर फ्रॉम, कहाँ से, 0 से लेकर, इनिशियल चार्ज 0 था, 0 टू Q, और छोटा q कैन राइट दिस इज ए q2 बाई इंटीग्रेटिंग इट। इसको इंटीग्रेट करेंगे, dw इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू q, q डिवाइड बाई c इंटू dq। dw दिस इज इक्वल टू w, और कैपेसिटर c वैल्यू इज अ कांस्टेंट इज टेकन आउटसाइड द इंटीग्रेशन, देन दिस विल बी 1 बाई c, और इंटीग्रेशन ऑफ दिस q इक्वल टू q स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और लिमिट अगर यूज करेंगे तो दिस विल बी ए 0 टू q। सो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड, दिस वर्क डन is stored in a capacitor in the form of, किस फॉर्म में स्टोर करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, and this equal to work done denoted by letter U equal to half, लिमिट अप्लाई करो, हाफ q स्क्वायर डिवाइड बाई c, और q स्क्वायर डिवाइड बाई 2c। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। और ये जो पहले हमने पढ़ा था c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाई d, दिस इज द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है और ये एनर्जी स्टोर्ड है। दिस इज द ड्यूरेशन एनर्जी स्टोर्ड। तो एनर्जी स्टोर्ड U इक्वल टू हाफ q स्क्वायर डिवाइड बाई c एंड q इज इक्वल टू cv। अगर ये वैल्यू रखता है तो एनर्जी स्टोर्ड U हाफ इज इक्वल टू cv स्क्वायर आएगा। क्या होता है, हाफ cv स्क्वायर। सो दीज आर द टू फॉर्मूले। ये अलग अलग एक
और ये दो फॉर्मूले के, अगर ये इसका Q इक्वल टू सी भी रखेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा और ये हाफ Q स्क्वायर सी। तो ये डेरिवेशन है। एनर्जी स्टोर दिस आल्सो इम्पोर्टेंट। लेकिन हमेशा बच्चे गलती करते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर पूछा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई डी, ये डेरिवेशन पूछा तो ये लिख देता है, या ये पूछा तो ये लिख देता है, ये अवॉइड करो। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट and this is the energy stored in a parallel plate capacitor. So energy stored in a parallel plate when capacitance, this combination of the capacitor or capacitor, combination of capacitor series, अगर सीरीज में किया तो सीरीज combination of capacitor series, then what is the energy stored? In a energy stored in a series, considering suppose n capacitors are connected in a series, सभी n capacitors को क्या किया, सीरीज में कनेक्ट किया, तो एनर्जी स्टोर्ड U इक्वल टू क्या आएगा, हाफ Q स्क्वायर डिवाइड बाई कैपेसिटेंस इन ए सीरीज, और इसका वैल्यू Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2 1 बाई सी एस दिस इक्वल टू, अगर इसका वैल्यू लिखते हैं तो Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2 सी एस मतलब 1 डिवाइड बाई सी वन प्लस 1 डिवाइड बाई सी टू प्लस डैश डैश से 1 डिवाइड बाई सी एन। इसी को लिखते हैं एनर्जी स्टोर्ड इक्वल टू Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2C Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2C2 C1 प्लस डैश 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 से Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2CN। तो कैपेसिटेंस अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं सभी का चार्ज इक्वल होता है, चार्ज क्या होता है, इक्वल होता है, लेकिन पोटेंशियल क्या होता है, ईच कैपेसिटेंस के अलग अलग होता है, ये हमने पहले इसमें पढ़ा। तो ये क्या हो गया, तो एनर्जी स्टोर्ड इक्वल टू पहला कैपेसिटर U1, दूसरे में कितना U2 डैश डैश दिस इज ए UN, मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटेंस in a series equal to sum of the energy stored in a individual capacitance। इसी तरीके से पैरेलल का देखते हैं, पैरेलल एनर्जी स्टोर्ड इक्वल टू Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एनर्जी स्टोर्ड इक्वल टू, ये दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ, हाफ CV स्क्वायर, कैसा ये पैरेलल में, तो इसको इसकी तरह से लिखेंगे हाफ V स्क्वायर, CP का जगह लिखेंगे C1 प्लस C2 डैश डैश दिस इज ए CN। ये क्या लिखा है, ये लिखा है कि व्हेन कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन ए पैरेलल अगर कैपेसिटेंस करेंगे तो टोटल कैपेसिटेंस ऑफ ए ऑल द कैपेसिटर इक्वल टू सम ऑफ देयर वैल्यूज। तो ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हाफ C1 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ C2 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ C3 इंटू वी स्क्वायर प्लस दिस डैश 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 हाफ CN वी स्क्वायर। अगर कैपेसिटेंस सीरीज पैरेलल है तो सबका पोटेंशियल सेम होता है, इसलिए V सभी जगह V आ गया। तो ये क्या हो गया, हाफ CV, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन फर्स्ट कैपेसिटेंस, एनर्जी स्टोर्ड इन द सेकंड कैपेसिटेंस, अगर थर्ड है तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए थर्ड कैपेसिटेंस, दिस इज UN, मतलब sum of the energy stored in the capacitance when they are connected in parallel equal to sum of the energy stored in a individual capacitance। इस तरीके से आता है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए सीरीज एंड पैरेलल, अगर कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्ट करो या पैरेलल कनेक्ट करो, दे स्टोर्ड द एनर्जी इक्वल टू सम ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। इसका प्रूफ पूछते हैं अलॉन्ग विद दिस डेरिवेशन। तो ये 3 मार्क्स का डेरिवेशन बनता है किसका, शो दैट एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, आल्सो derive the energy stored in the parallel combination is same as the energy equal to same as the energy stored in a series combination। it is आसान, ये आसान क्वेश्चन है और इस तरीके से वर्कआउट करना है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ओके देन दूसरा आर्टिकल आगे का पढ़ते हैं। आगे का एक आर्टिकल है
common potential. Common potential. Common potential and energy lost during the sharing of charges. जब चार्ज शेयर करते हैं तो एनर्जी लॉस्ट होता है. दिस इज द इम्पोर्टेंट आर्टिकल in the numerical point of view as well as for the derivation. एक simple article है. दो कैपेसिटेंस है. when two capacitance they are having their values is a C1 and this is the C2, their values is a C1 and C2, they are having a different potential V1 and V2. So energy stored in the capacitor, the C1 and C2 are two capacitors of potential. Okay, this is the potential V1 and V2. So total potential V1 and V2 इसके तो total energy और energy stored इनिशियली दोनों में एनर्जी स्टोर्ड U, दिस इज द इनिशियल इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर. दिस इज द टोटल एनर्जी. वी कैन पुट दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. ये हो गया C1 C2 व्हेन इट इज दे हैविंग ए पोटेंशियल V1 and V2. The energy stored initially, the energy stored, this total energy stored in both the capacitance equal to half C1 V square plus half C2 V square. This is the total energy stored. अब इसको देखेंगे तो अब ये दो कैपेसिटेंस है इंडिविजुअली जब दे सेपरेट है. इसके ऊपर पोटेंशियल है V1, इसका पोटेंशियल V2 है, इसका वैल्यू C1, इसका वैल्यू C2. तो एनर्जी स्टोर्ड आइदर एक सीरीज कनेक्ट करो या पैरेलल कनेक्ट करो, दोनों में भी एनर्जी स्टोर क्या आता है, सम ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, ये आता है. ये हमने पहले इसमें देखा. अब यहाँ क्या किया है, ये दो पोटेंशियल दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. व्हेन दीज टू C1 and C2 connected parallel or connected to each other, एक दूसरों को कनेक्ट किया. अगर ये दो कैपेसिटेंस है और ये एक दूसरों को अगर हम ऐसे कनेक्ट करते हैं पैरेलल तो क्या होगा, अगर ये कनेक्ट पैरेलल करते हैं तो जो चार्ज पोटेंशियल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हायर टू लोअर. जिस कैपेसिटेंस में पोटेंशियल हायर है वहां से कहाँ होगा, लोअर पोटेंशियल के तरफ जाएगा. जिससे पोटेंशियल will flow from higher value to lower until कब तक, both has same potential. Both has same potential. This known as a common potential. Known as common potential. इसी को बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल. तो ये क्या आएगा कॉमन पोटेंशियल, तो दिस इज ए देन पोटेंशियल इज ए कॉमन. सो एनर्जी स्टोर्ड U इक्वल टू पोटेंशियल का कॉमन पोटेंशियल इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड, और दिस कॉमन पोटेंशियल इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल V इक्वल टू this total charge divided by total capacitance. P is equal to charge divided by total capacitance. टोटल चार्ज कितना है Q1 में, सपोज Q1 है, दूसरे में कितना है Q2, और देयर कैपेसिटेंस कितना है C1 प्लस C2.
Q इज इक्वल टू क्या होता है इसका फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू सी वी होता है। तो इसी तरीके इसका आएगा कॉमन पोटेंशियल V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। लेकिन यहाँ पोटेंशियल इज सेम कॉमन है, तो यहाँ V1 V2 नहीं आएगा, क्या आएगा C1V प्लस C2V डिवाइड बाई C1 प्लस C2। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कॉमन पोटेंशियल। कॉमन मतलब दोनों में सेम पोटेंशियल, सो इसीलिए ये V लिखा है। दिस इज द V कॉमन पोटेंशियल C1 V इक्वल टू, और both having a common potential, it is a V. This known as a common potential when they are connected in a parallel. अगर दोनों पैरेलल करते थे उनका पोटेंशियल सेम आता है और चार्ज क्या होता है अलग अलग होता है, इसीलिए ये फॉर्मूला यहाँ ऐसा लिखा है। अब इसमें देखो कि हम अभी एनर्जी स्टोर्ड और लॉस ऑफ द एनर्जी, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एनर्जी लॉस्ट यहाँ से लिखते हैं कॉमन पोटेंशियल V इक्वल टू टोटल चार्ज। टोटल चार्ज मतलब पहले कैपेसिटेंस के ऊपर चार्ज, दूसरा चार्ज इक्वल टू CV होता है। तो पहले का चार्ज कितना आएगा C1 V1 और दूसरे का चार्ज C2 V2 डिवाइड बाई टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। देन एनर्जी लॉस्ट इक्वल टू लॉस इन एनर्जी मतलब पहले कितना एनर्जी, बिगिनिंग में एनर्जी, इनिशियली कितना एनर्जी और फाइनल कितना एनर्जी। तो एनर्जी लॉस इक्वल टू एनर्जी U इनिशियल माइनस एनर्जी U दिस इज फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल, दिस इज एनर्जी लॉस। एनर्जी इनिशियल एनर्जी कितना है, तो इनिशियली दिस एनर्जी इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस फाइनल कितना एनर्जी हो गया, फाइनल एनर्जी फाइनल U फाइनल एनर्जी दिस फाइनल इक्वल टू फाइनल एनर्जी, ये फाइनल एनर्जी कितना हो जाएगा हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 into V square. V is a common potential. We can take the common half C1 plus C2 into V square. अब इसका वैल्यू लिखते हैं हाफ C1 plus C2, कॉमन पोटेंशियल कितना है C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 और इसका स्क्वायर, इसका वैल्यू यहाँ रखा तो ये इतना आएगा। ये वैल्यू रखते हैं यहाँ हाफ C1 प्लस C2 इन ब्रैकेट C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 और इसका स्क्वायर। पहले तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी इसे एक स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर इसके साथ चला जाएगा, ये दो टर्म, तो दिस इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ इसके ब्रैकेट का स्क्वायर करते हैं C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स C1 C2 V1 V2। अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो ये टर्म आएगा और ये देखिए माइनस है, डिवाइड बाई एक टर्म बचा हुआ इसका C1 प्लस C2। अब इसका एलसीएम लेंगे, सभी जगह हाफ हाफ कॉमन है तो वो कॉमन 1/2 कॉमन लिया और इससे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले टर्म से करेंगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर C2 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस क्या आएगा C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ तो बाहर है तो C1 C2 V2 स्क्वायर, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया प्लस C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर। तो ये दो टर्म्स है, ये दो टर्म्स है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करने से 4 टर्म बन गया और इसे माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करें माइनस से पूरा ब्रैकेट को माइनस 2 टाइम्स C1 C2
V1 V2 और ये आएगा सबका डिवाइड बाई सबका C1 C2. तो दिस इक्वल टू एनर्जी लॉस्ट इक्वल टू 1/2 टाइम्स C1 C2 ब्रैकेट में क्या क्या बचता है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बचा हुआ टर्म क्या है C1 C2 C1 C2 C1 C2 तीनों में भी है, तो हम उसको कॉमन निकालेंगे, C1 C2 बचे हुए V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर ये टर्म और माइनस V1 ओके 2 टाइम्स ऑफ ए V1 V2 ये टर्म बचेगी। अब ये क्या है, एनर्जी लॉस इक्वल टू C1 C2 V1 माइनस V2 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स C1 प्लस C2। इसको क्या किया, V1 माइनस V2 ब्रैकेट स्क्वायर C1 C2 और दिस इज द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ चार्जेस। मतलब अगर दो कैपेसिटेंस हमने अगर पैरेलल कनेक्ट किया, दोनों का चार्ज अलग अलग है, तो ये दोनों चार्ज शेयर करेंगे और शेयरिंग विल बी टेक्स प्लेस अंटिल दे हैविंग ए कॉमन पोटेंशियल। जब तक उनका पोटेंशियल सेम नहीं होता तब तक एनर्जी क्या होगा, इसका शेयर हो जाएगा और दिस नोन एज ए कॉमन पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का क्या होता है, टोटल चार्ज डिवाइड बाय कैपेसिटेंस। सो ये दिस इज ए C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2, ये हो गया कैपेसिटेंस। उसके बाद जब ये शेयर करते हैं चार्ज एक दूसरों को तो क्या होता है, सम एनर्जी इज अ लॉस्ट, क्योंकि चार्ज जिसमें से फ्लो होता है, चार्ज फ्लो होता है, सम हीट प्रोड्यूस होता है, हीट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो गया। सो हीट एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ ए चार्ज। सो दिस इज द एनर्जी लॉस्ट इक्वल टू इनिशियली कितना एनर्जी थी, इतना एनर्जी थी और फाइनल कितना हो गया, जब कॉमन पोटेंशियल आ गया, दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो इसीलिए यहाँ V रखा और यहाँ से V कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू रखा, तो ये वैल्यू आ गया फाइनल पोटेंशियल। जो एनर्जी लॉस्ट है, इनिशियल कितना एनर्जी था और फाइनल कितना, ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा एनर्जी लॉस्ट। तो ये सिंपल एक वर्कआउट किया ये, तो एनर्जी लॉस्ट इक्वल टू C1 C2 in bracket V1 minus V2 bracket square divide by 2 times of a C1 plus C2. This is the important derivation for the numerical purpose, to for solving the numerical। ये दोनों का कभी पूछते हैं what is the common potential और what is the energy loss during the sharing। So आज का क्लास में हमने की आज के क्लास में हमने दो आर्टिकल पढ़े, एक energy stored in the capacitor in series and parallel combination equal to half CV square और दूसरा common potential and energy lost, और दोनों आर्टिकल आसान है। तो theory this is the important part, तो इसको प्रिपेयर करिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।